I request all the dignitaries to kindly please wait on the stage as I request Ms. Arupa to please felicitate them with flowers. We are privileged by your presence and thank you so much for making it here. A loud round of applause for our honorable dignitaries. Thank you so much. Thank you. Especially artists. If an art form does not reflect the existing milieu, it stagnates. Today, we are privileged to welcome Dr. Sonal. Sonal Mansingh needs no introduction, but here are a few words to celebrate her life, that is, legacy in itself. The iconic cultural personality of India, Dr. Sonal Mansingh, is an internationally renowned cultural educator, writer, scholar, and thinker. She is the acknowledgement of masters of cultural interpretations and of explaining linkages between philosophy, literature, sculpture, and mythological parables that their impact on socio-cultural tapestry of India. A celebrated dancer, Sonal has been unique among dancers for her concern for issues of ecological imbalance, environmental protection, empowerment of women, and social justice, especially for the weaker sections of the society. This has led to creation of numerous path-breaking choreographies. She has performed, given lectures, and conducted workshops in 90 countries of the world. Dr. Sonal's ever-vibrant creativity has given new dimensions to known repertoires practiced in India. Natya Katha is the ancient form of storytelling which Sonal has embellished with her own singing, narrative skills and abhinay. That is the art of expressive communication through hand gestures, words and a face that reflects myriad emotions. She has been nominated by the President of India to Rajya Sabha, India's upper house of parliament in July 2018 in recognition of her lifelong dedication and service to strengthening and spreading India's rich cultural traditions. She has been nominated as one of the Navratnas for Swachh Bharat Mission by Prime Minister Shri Narendra Modi in 2014. Her significant contribution to the Indian culture has been recognized by numerous awards and honors, and she also has 4 doctorates to her profile.
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपीमोक्षप्रदायकं गोवर्धनोहरं वन्दे गोपालं गोपवल्लभम् पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं वन्देऽहं जगद्गुरुं श्रीकृष्णशरणं मम श्रीकृष्णशरणं मम श्रीकृष्णशरणं मैं मीरा, वही मीरा, कृष्ण दीवानी, दासी कृष्ण की। मैं वही मीरा जिसका जन्म 1511 में बताते हैं, बसंत पंचमी के दिन। मैं वही मीरा जिसके पिताजी बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे और मां सा अपने पिताजी के घर, नाना सा के घर मुझे ले गई वीरता। वही मेरा लालन पालन हुआ, वही मेरा लिखना वगैरह हुआ। एक दिन मेरी माँ आई और उसके बाद झरोखा खोलकर कुछ देखने लगी। देखते देखते हंस रही है। मैंने पूछा था, माँ क्या देख रही हो, क्यों हंस रही हो? तो माँ बोली, देखो बारात आ रही है, एक शूरवीर दूल्हा आएगा और अपनी बीघड़ी को विवाह करके ले जाएगा। मैंने पूछा, माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ फिर हंसी और जाकर एक बहुत सुंदर मूर्ति ले आई। ऐसी सुंदर मूर्ति मैंने नाना सा की पूजा में भी नहीं देखी थी। आहा, माँ ने कहा, इससे लाड करो, इससे बात करो, इससे खेलो मीरा, मैं भी आती हूँ। अच्छा माँ। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे पता है, मैंने तुमको स्वप्न में ही देखा है। तुम वही हो ना? अच्छा बात करो ना मेरे से। मैं अकेली कैसे बोलूंगी? मैंने बात सुनी होगी। कह रहे थे, मीरा जन्मों जन्म से तुम मेरी हो। छोटी थी, ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन बोल गया। मेरा दूल्हा मेरे साथ बात कर रहा। अब सो जाओ, अब सो जाओ। ऐसे यार यार में दिन बीतते चले गए। नाना साहब के यहाँ संतों का नित्य आना जाना होता था।
उनके साथ बैठकर मैं उनकी बातें सुनती। कुछ कुछ समझ में आता और जो नहीं आता नाना साहब से पूछ लेती। ऐसे होते होते मेरा लिखना पढ़ना भी आगे चला। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, ऐसा मुझे एहसास दिलाया गया। एक दिन मेरी माँ आई और कहने लगी कि मीरा, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े ठिकानों से विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं ज्यादा। अच्छा माँ, तो देखो आज ही चित्तौड़ महाराणा साहब के यहाँ से उनके युवराज के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है तू, और मैं उसको स्वीकार कर रही हूँ। जी, मीरा का विवाह चित्तौड़ के युवराज से होना तय हुआ। तुरंत बुलाया दासी को, बहुत जल्दी बारात आ जाएगी। श्रृंगार लाओ, मीरा का श्रृंगार करो और जल्दी जल्दी शीघ्र मीरा का श्रृंगार होने लगा। मैं तो बैठ गई अपना घाघरा फैला के। मेरे मन में वही कृष्ण का रटन मनन चिंतन चल रहा है। किसी के साथ विवाह हो ना हो तो क्या, वो तो मेरे हृदय का स्वामी है। बोला पहनाया गया, कान में सुंदर कुंडल, गले में नौलखा हार, कंठा तिमड़ियां, बाजूबंद और कितनी सारी सुंदर चूड़ियां, सोने के फूल, मोती रत्न जड़ित और पैर में पायल, नाक में इतनी बड़ी नथ पहनाई गई मुझे। मन ही मन में सोचती, ये सब पहन के मेरे दूल्हे को मैं ले जाऊंगी, साथ में बताऊंगी ना उनको। हाँ, अब माँ साहब ने कहा आनंद उत्सव है, चलो घूमर हो जाए।
विवाह की बारात चित्तौड़गढ़ पहुंची है। पालकी में मैं बैठी हूँ और थोड़ा थोड़ा पर्दा आड़ा करके देखने की चेष्टा कर रही हूँ। एक नए जीवन का प्रारंभ है या वही पुराने जीवन का प्रवाह है। चित्तौड़ के दुर्ग के मुख्य द्वार पर भव्य स्वागत हुआ। बांदी जन भाट उच्चारण सारे प्रशंसा कर रहे हैं, मंगल ध्वनि उठ रही है और नगाड़े बज रहे हैं। मैं पालकी में बैठी बैठी सब सुन रही थी। चित्तौड़ नरेश की जय आदि ध्वनियां गूंज रही है। मेरी पालकी को अंदर जनानी जोड़ी में ले जाया गया और अंदर जाके पालकी जब उतारी, मैं धीरे से पर्दा खोल के सासू साहब को वही प्रणाम किया। धीरे से उठे बाहर पैर रखा और चरण स्पर्श किए। यहाँ मेरा भी अलग से स्वागत हुआ और मुझे मेरे कक्ष में ले जाया गया। फूलों से सजा हुआ चुपके से मैंने अपने कृष्ण को स्थापित कर दिया। अब राणा जी दूसरे दिन मुझे लेकर आए हैं और कहते हैं, मीरा चलो, तुम्हारे लिए मैंने एक विशेष व्यवस्था की है। सुना है कि तुम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हो, नाचती हो, गाती हो, तो तुम्हारे लिए मैंने एक कृष्ण के मंदिर का निर्माण करवाया है। हाँ मीरा, तुम सेवा पूजन करना, मन से नृत्य करना, गीत गाना, मैं भी सुनूंगा, मैं भी देखूंगा। मैं तो आनंद के मारे झूम उठी, वाह मेरे प्रभु, वाह मेरे स्वामी, यहाँ पर भी प्रबंध कर दिया तुमने। और अब मैं नित्य पूजा अर्चना करने लगी। मैं गा रही हूँ। गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके
पद्म कंठमाल होई मोर तुम गिरधर गोपाल साधु संगत बैठ बैठ लोक लाग छांदी गई कुल की जानी क्या करेगा कोई और लोग गिरधर गोपाल दूसरा कैसे हो सकता है? ये मेरा गिरधर, ये मेरा कान्हा, ये मेरा कन्हैया, ये मेरा कृष्ण शुश्रूषा करने के लिए, औषधि समय पे देने के लिए। और जब एक दिन मैं जरा सी पूजा के लिए गई ही हूँ तो एक समाचार लेके दूत आया है। मेरे पति गोलोकवासी हो गए और जय जयकार सुनाई दे रहा है। महाराणा विक्रम सिंह की चित्तो नरेश की जय, मारवाड़ के धरती की जय। अच्छा, जो देवर शाह को गद्दी पर बिठाया गया है, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। तेरे हाथ में सब कुछ है मेरे कृष्ण, अब मुझे भी समेट ले। मैं अपने हृदय में मंथन कर रही और वहीं से अमृत बन के निकला है। हरि हरि हरो जननी हरि तुम हरो। लेकिन मैं जा रही हूँ और बीच में मुझे संदेश मिलता है कि भाई साहब गाना बंद करो, महाराणा साहब का हुक्म है, गाना बंद करो। मैं बीच में ही रुक गई और सोचने लगी, बंद कैसे करूं, बंद कैसे करूं? ये तो मेरा हरि 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 तुम हरो जनकी द्रौपदी लाज बड़ा
हरि तुम भक्तो जननी भगत कारण रूप नर हरि धरो आप शरीर भगत कारण रूप नर हरि धरो आप शरीर नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण 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 हरिण कश्यप माधरी हरो नाहिनी हरि तुम हरो जननी डूबते गजरा जरा क्यों डूबते गजरा जरा क्यों कियो बाहर नीर कियो बाहर नीर हरि तुम हरो जननी
हरि, मेरे कृष्ण, मुझे भी उबारो। अब मेरी पीड़ा मेरे से सहन नहीं होती है। मैं दुख के मारे बन बन भटक रही हूँ, डोल रही हूँ। मेरी औषधि नहीं हो रही। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं। वेदन मीरा को, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पीड़ मिटे जब वैद सांवरियो, वैद सांवरियो। वैद तो वही है, एक अकेला मेरा राज वैद, मेरा देव वैद, मेरा स्वामी वैद। मेरी पीड़ा को मिटाने वाले तुम हो। कहाँ हो प्रभु, कहाँ हो? यहाँ राणा के संदेश आ रहे हैं, नित्य संदेश आ रहे हैं। भाई, सेवा पूजा बंद करो, ये हमारे कुल के अनुरूप नहीं है। हमारा कुल चित्तौड़ का, मेवाड़ का राजकुल है। यहाँ ऐसे कृष्ण का नाम और भक्तिन बन के गाना बजाना नहीं हो सकता। कुल का कलंक हो तुम। अच्छा होगा कि तुम चित्तौड़ छोड़कर निकल जाओ भाई। यहाँ अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अच्छा, तो मैंने पैर में घुंघरू बांध लिए और मैं आनंद से नृत्य करने लगी। घुंघरू बांधे मेरा नाचे रे, 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 मेरा नाचे रे। पर घुंघरू बांधे मेरा नाचे रे, पर घुंघरू बांधे मेरा नाचे रे। लोग कहे मेरा भाई बावरी, लोग कहे मेरा भाई बावरी। सास कहे, सास कहे कुल नासी रे। पर घुंघरू बांधे मेरा नाचे रे, पर घुंघरू बांधे मेरा नाचे रे। विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा। जी का पाला राम ने भेजा, विष का
लेकिन प्रतिदिन सास, ननंद, जेठानी, देरानी और दास दासियों में बात चलती। सास ने भी कहा, कुलनाशी हो, जाओ भाई यहाँ से। अच्छा जी, मेरे स्वामी के जहाँ पर चरण चिन्ह है, उन चरण चिन्हों की धूल मेरे शीश में धारण करने अब मैं निकलूंगी। मैंने मन ही मन राजकुल से विदाई ले ली, मन ही मन सबका धन्यवाद किया, मन ही मन मैंने अपने स्वामी को कहा, रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। मैंने उठाई अपनी पोटली, लिया अपना एक तारा और उठ के मैं चलती बनी। जब मैं चित्तौड़ से बाहर निकली, किसी ने न रोका, न टोका, न पूछा, अरे भाई कहाँ जा रही हो, राजकुल की बहू हो। किसी ने नहीं देखा, सबने अनदेखा कर दिया। मेरे लिए तो यही पर्याप्त था। मैं अपना भजन गाती हुई चल पड़ी वृंदावन की ओर। और कहते थे उन दिनों हमारे देश में, हमारे मारवाड़ में, मेवाड़ में विधर्मियों का राज्य था। विधर्मी दुष्कर्म करते थे, विधर्मी आके बस गए थे। लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं अपने कृष्ण को लेकर झूमती हुई जा रही हूँ, न मेरे आगे न पीछे, न दाएं न बाएं न कोई, और उसी कृष्ण में सारा विश्व मेरे साथ चल रहा है। किसी ने पूछा, भाई अकेली जा रही हूँ, डर नहीं लगता? मैंने कहा, मैं अकेली? ध्यान से देखिए, मैं कहाँ अकेली? मेरे साथ तो मेरा जगतपति त्रैलोक्य स्वामी चल रहा है। डर रहेगा। और मैं चलते बनी। कुछ लोग मेरे साथ बोलिए और चलते चलते गुनगुनाने लगे मेरे पद। फिर चले जाते, फिर आके जुड़ जाते, कहते, भाई देखो, तुम जो गा रही हो ना, वो हमने लिख दिया है, देखो। मेरा नहीं है, किसी और का होगा, पता ही नहीं। चल रही हूँ, गाँव रुक रही हूँ, गाँव लोग आ रहे हैं, भजन पद सामने बैठ के गा रहे हैं, आनंद ही आनंद है। और वहाँ चलते 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 ब्रजभूमि पहुँच गई। चरण धूली सर पे लेनी है। मणे चाकर चाकर रहसु बागल कासु, चाकर रहसु बागल कासु, नित उठ दर्शन पासु। वृंदावन कुंज गलियों में, वृंदावन कुंज गलियों में, गोविंद लीला का वृंदावन में खेलू चला है, वृंदावन में खेलू चला है,
अनुकूलगी वाला जोगी आया जोग करण जोगी आया जोग करण को तप करने सन्यासी हरि भजन को ए हरि भजन को साधु आए वृंदावन के बासी मने चाकर राखोजी। मैंने चरण धूली मेरे कृष्ण की सर पे लगाई और सुना है कि यहाँ मेरे स्वामी के परम भक्त जीव गोस्वामी जी का आश्रम है, वहीं जाने की इच्छा है। तो मैं पूछते पूछते चली गई और अब आश्रम जब पहुंची तो बाहर खड़े शिष्य से कहा, गोस्वामी जी को बताएं बाई मीरा चित्तौड़ से दर्शन के लिए आई है। शिष्य दौड़ा दौड़ा अंदर गया और जाकर अपने गुरु से बात की और दौड़ा दौड़ा फिर आ गया। अरे मीरा देख लीजिए कहाँ है? आ गया। हाँ हाँ चले? नहीं भाई नहीं, गुरुजी आपका साक्षात्कार नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्यों? गुरुजी ने कहा है मैं किसी स्त्री का मुख नहीं देखता। हरि बोल हरि बोल। आज तक मैं सुनती थी सृष्टि मात्र में एक ही पुरुष है और एक आज जाना एक नहीं दो है। हरि बोल हरि हरि। चल पड़ी मैं, चल पड़ी और पीछे पीछे जब ये खबर सुनी, ये कथा सुनी तो दौड़े 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 गोस्वामी जी आए और अरे उठिए, ये क्या? उठिए उठिए उठिए। भाई तूने आज हमारी आंखें खोली है, आज हमारी भक्ति की कसौटी हो गई। भाई क्षमा कर। अरे क्षमा मेरे से नहीं उनसे मांगो। बस इतना जानो कि सृष्टि में एक ही परम पुरुष है, पुरुषोत्तम नारायण वासुदेव मेरा। अब चल पड़ी और आगे गई मैं और वहां से चलते चलते गुजरात पहुंची। गुजरात में पश्चिमी समुद्र के तट पर द्वारका नगरी है। वही द्वारका जिसको वरुण देव समुद्र से उठाकर लाए थे, वही द्वारका जो प्रकट हुई थी, वही द्वारका स्वर्ण मंडित रत्न जड़ित द्वारका, जहाँ के ध्वजा कलश मीलों तक दिखाई देते हैं, वही मेरे कृष्ण की द्वारिका नगरी। और वहाँ मैं पहुँची हूँ। वहाँ द्वारकाधीश का भव्य मंदिर है। मैं अपना कीर्तन करते करते और जब राजस्थान से ब्रजभूमि होकर मैं गुजरात से सौराष्ट्र पहुंची और द्वारका नगरी के दर्शन किए तो स्वतः ही मेरे मन में ये स्फूर्णा हुई,
शर्माती नहीं रे विसारूं हरि आवता ले जाना मार्ग वच्चे श्वास आवता ले जाना मार्ग वच्चे जन्म से मृत्यु मृत्यु की जन्म घटमाण आवता ले जाना मार्ग वच्चे अमूल्य धवन दूजई मारा હૃદયમાં રત્નનો પ્રકાશ એવો ફેલાયો એવી અમૂલ્ય વસ્તુ મને જડી આવતાને જાના માર્ગ વચ્ચે અમૂલ્ય અંતરમાની નહીં રે વિસારું શું પહેર્યું છે મારા દ્વારકાધીશે પીળા પીતાંબર વાદળમાંથી જેમ વીજળી ચમકે એવા ચમકવાળા પીળા પીતાંબર પહેર્યા છે મારા સ્વામીએ પીળા પીતાંબર જરકશી જામા પીળા પીતાંબર જરકશી જામા કુંડળ તારે ભરી કુંડળ તારે ભરી અંતરમાની નગરે વિસારું હરી જળ જમુનાના પાણી રે જાતા જળ જમુનાના પાણી રે જાતા શિર પર મટકી ધરી હેજી શિર પર મટકી ધરી અંતરમાની નહીં વિસારું હરી દ્વારકાધીશના મંદિર જતા જતા મને સ્ફૂર્ણા થઈ કે મારા સ્વામીને હવે તો વાસમાં મળીશ અને એ જ મારા સ્વામી સાથે હવે મારો મેળાપ થવાનો છે દ્વારકાધીશ મંદિરમાં પહોંચી પણ સાંભળ્યું કે ભાઈ હજુ કપાટ ખુલ્યા નથી ધૈર્ય ધરો અને ઘડીક વિશ્રામ કરો વિશ્રામ મારે માટે વિશ્રામ નથી મારે મારા સ્વામીને મળવું છે અને ભાઈ તમને મળવા માટે ચિત્તોડથી 5 બ્રાહ્મણો સહિત સેના આવી છે ચિત્તોડથી 5 બ્રાહ્મણો હા જરાક સમજણ ના પડી બ્રાહ્મણો આગળ આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા ભાई जब से तुम गई हो तब से चित्तौड़ पे एक के बाद एक संकट टूट पड़ा है क्षुधा बीमारी रोग तरह तरह की आपत्तियां और हमें बताया गया है महाराणा शाह का हुक्म है बाई को वापस चित्तौड़ ले आओ तो बाई आप चलो हमारे साथ नहीं आप ना हम यहाँ आमरणांत उपवास करके बैठे हैं जब तक आप हमारे साथ नहीं चित्तौड़ चलेंगे
मैं बड़ी दुविधा में, मैंने कहा कपाट खुलने दीजिए, मैं मेरे स्वामी के दर्शन करके आती हूँ, उनकी अनुमति ले लेती हूँ। कपाट खुले, आरती होने लगी, शंख बजने लगा और मैं बाई मीरा बाई मीरा कहे शर प्रभु गिरधर नाम सुंदर वरने बली हे जी विठ्ठल वरने बली। बोले